Assalamu alaikum. Today we have 13th lecture for Business Finance MCT 232. We were studying about stock valuation, and I have told you in the last lecture that we are going to study financial statement analysis or the risk and return. The next chapter we have is risk and return. Let's have a brief overview of our last lecture of stock valuation. Well, in the last lecture we studied about the dividend growth model, that is about this common stock valuation, and we also studied that common stock valuation, whenever we have to find out the value of a common stock, we find out two kind of cash flows. The first one is capital gain and another one is dividend gain. When we talk about capital gain, it is a kind of a return or a cash flow return that is earned through the buying or selling of the shares. For example, you buy the share through a broker, and the amount you paid is rupees 100, and you at some point in time, after some time, you have decided to sell out your shares, or your broker advised you to sell your shares, and the price in the market at the time of you decide to sell the shares is rupees let's say 120. You buy those shares at rupees 100, and you have decided to sell those shares at rupees 120. That means now when you sell these shares, that means you are earning rupees 20. That rupees 20 is your capital gain, and in case you get a loss, that is a capital loss. When we talk about dividend gain, it is about the future dividends. The future dividends or the future cash flows you are going to get in the form of dividend. Whenever you do an investment, you get a return in the form of a cash flow, and that cash flow in case of stock investment is dividend. So the amount of return the company is giving you in the form of dividend on your investment is the dividend gain. तो वो जो अमाउंट आपको अपने रिटर्न मिलती है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो आपका गेन होता है, डिविडेंड गेन होता है. Then we found out that there are three different ways of finding value for stock, and basically we have one dividend growth model. The dividend growth model had three different assumptions. The first thing is that we depend on forecasting for finding out the value for stock, and we take forecasted or expected returns that are going to be there in the future, and we find out their present value today. This is the concept of dividend growth model, and we have to assume those forecasted expected returns or the cash flows or the dividends. So we have three kind of assumptions. The first one is that the growth rate at which the company is going to perform or the company is going to grow or the dividend are growing is constant. We assume that there is a constant growth. That means, for example, company is growing at 10% constant growth. Then we had zero growth. That means there is no growth in the company. When we talk about constant growth or zero growth or any other kind of a growth, that means we are forecasting that value. Forecasting that value based on the trend analysis or the analysis we have done in the using that past values. For example, we will be taking past 5 or 10 years and then deciding that whether these what is the average return and whether this return is going to be followed in the future or not, whether this trend is going to be followed in the future or not. So we find out the trend, basic trend, that whether the company is performing good, bad, what is the growth rate, and how we should expect the value of a growth or the dividend in the future. So we do the trend analysis from the past cash flows and then find out and forecast the future trend or the future growth rates or the dividend cash flows. Well, when we talk about constant growth, that means in the future, in the past, company has been, let's suppose for any single company ABC, and we would say that in the past the company was growing on average at 10%, and we expect or forecast that company will grow on the same 10% constant growth for the next coming up years. और उसमें हम कर दे क्या, लेट्स सपोज 10% हमने डाल दिया कि 10% आपकी एक सर्टेन वैल्यू है, 10% पे आपकी जो है ग्रो कर रही है
कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी के डिविडेंड्स। अब कंपनी की जो इनकम है अगर वो ग्रो करिए 10% में, सिमिलरली आपके डिविडेंड्स भी इसी तरह ग्रो करें। लेट्स सपोज आप फर्स्ट जिस ईयर से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज 2000 से ईयर 2000 में 10% इंक्रीज हुई, 2001 में 10%, 3 में 10%, और अकॉर्डिंगली इसी तरीके से वो इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है। देन वी हैड then we found out that there is no growth as well. For example, जब हम ये कहते हैं कि कंपनी बिल्कुल स्टैग्नेशन लेवल पे पहुंच गई है, there is no growth in the company, और कंपनी जो है उसका कोई सर्टेनिटी इस तरह है कि कुछ चेंजेस नहीं है, इस तरह की कंपनी जो है वो सर्टन है कि जी हाँ स्टैग्नेंट है कि कंपनी जो है वो इसी लेवल के ऊपर अपनी इनकम अर्न करेगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा तब होता है जब, और बहुत स्लाइट चेंजेस आ रहे होते हैं, ऐसा तब होता है जब कंपनी बहुत ज्यादा एक सर्टन लेवल पे पहुंच चुकी है, या एक बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने कुछ गोल्स अचीव कर चुकी है और उसी लेवल के ऊपर इंक्रीज करे। या फिर कोई ऐसा लेवल भी आ सकता है कि कंपनी एक लेवल पे इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद एक सर्टन लेवल पे होगी, कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे, कंपनी उसी लेवल पे एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही अपनी अर्निंग करी हो सकता है किसी लेवल पे जाके वो चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज हो। अब एक चीज इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर हम डिसाइड करें टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और आगे हम उसकी फोरकास्टिंग देखते हैं, तो वो हो सकता है जितने सालों के हम इन्वेस्टमेंट करें उस टाइम पीरियड में देयर इज नो ग्रोथ, और हो सकता है बाकी ईयर्स में कहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो। और समटाइम ये सर्टेनिटी जो है वो थोड़ी अच्छी भी होती है कि अगर नो ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब हम थोड़े सर्टेन है यार कुछ डिविडेंड तो मिलेगा, चलो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो दैट डिपेंड्स। तो जीरो ग्रोथ मॉडल जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम ग्रोथ रेट हमेशा जीरो लेते हैं। Then we talked about variable growth model. Well, variable growth model is about the growth phases. That means when we talk about variable growth, that means the growth rates will vary. The growth rate will change over the time. For example, for year 2 सालों के लिए शायद आपकी जो growth rate था वो 16% था, then next 2 years के लिए 18% था, उसके बाद 4th ईयर में जाके आगे वो कांस्टेंट हो गया है 10% के ऊपर। दैट मीन्स वो जो चेंज आ रहा है आपके ग्रोथ रेट के अंदर, दैट इज अ वेरिंग ट्रेंड। वो जो वेरिंग ट्रेंड है उसके लिए हम वेरिएबल ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं। अब वेरिएबल ग्रोथ मॉडल के अंदर का फाइंड आउट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है कि व्हाट वी डू इज वी टेक द वेरिएबल ग्रोथ रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स एंड उनके डिविडेंड फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद उस ईयर से आगे जहां हमारे ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है उससे आगे जाके हम एक सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट करके कांस्टेंट ग्रोथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उनको ऐड कर देते हैं डिविडेंड में। Let's have a brief overview. For example, if you talk about constant growth model, that is P naught cap is equals to D1 over RS minus G. When we talk about zero growth model, that will be P naught cap is equals to D naught over RS. And when we talk about variable growth model, that is P naught cap is equals to D1 over 1 plus RS power 1 plus D2 over 1 plus RS power 2 plus so on up to D infinity over 1 plus RS power n. For variable growth model, we have growth rate for different years. For example, we have 16% for 3 years and then 8% forever constant. So that will be D1, D2, D3 and P3, और आप यहाँ पे P naught की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। So this is how we find out the value of a variable growth model. Now let's move on to our next chapter, that is risk and return. And let's have a brief overview what we are going to cover in our chapter of risk and return. Well, risk and return, we will be defining risk and return. What is risk? What is return? We will be looking at standalone risk. We will be looking at portfolio risk and return. We will be using probability distributions to measure risk. That is, we are going to find out the standard deviation and coefficient of variance. Then we will be looking at different attitudes towards risk. That is, whether we have what kind of investors we are, whether we have risk averse or the risk takers. Then we will be discussing risk and return in a portfolio context. के portfolio में investment की जाए तो उसके अंदर risk and return किस तरीके से measure किया जाता है. Then about the diversification, and then we will be using a last thing in this chapter, that is the model, the capital asset pricing model for finding out the risk and the return of the portfolio or a single individual asset. Now let's have a brief overview of what is return and what is risk. The basic premise of investment is risk and return. For example, whenever we talk about investment,
फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपने एक बात की कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पहली चीज से पहले भी जितनी दफा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे, हम यही देख रहे थे कि जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट पहली दफा किया है, अपना रिटर्न ऐड किया है, लेट्स सपोज, उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद मेरे पास क्या आता है कि जी पहले चीज मुझे इन्वेस्टमेंट करने का रीजन क्या है, रिटर्न चाहिए। दूसरा, इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू डू एन इन्वेस्टमेंट और वहां पे रिस्क एंड रिटर्न दोनों में सब चीज किसी चीज को कंसिडर ना करो। तो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरा जो पहली इंटेंशन होती है इन्वेस्टमेंट करने की, वो क्या होती है, द इंटेंशन इज टू गेट द रिटर्न, कि कितना ज्यादा रिटर्न मुझे मिल रहा है। Now let's suppose you invest 100,000 रुपीज और आप ये रिटर्न आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि 100,000 के ऊपर मुझे 10% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 100,000 के 10% फाइंड आउट किया, दैट्स 1,000। तो आप 100,000 के 10% रिटर्न आपको आ रहा है, प्लस आपके पास आ रही है वैल्यू ऑफ रिस्क। अब मुझे ये पता है कि मैं 100,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, 100,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे ये पता है मेरा रिटर्न है। पहली चीज आती है दिमाग में, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, इंटेंशन, इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न आए। दूसरी चीज जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। आप ये तो देख लेते हो कि यार मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना मेरे पास रिटर्न आ जाएगा। मैं कहता यार इसकी जगह मैं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं, ये एक ऑप्शन है मेरे पास, एक बिल्डिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी, दूसरा ऑप्शन है मैं किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी, इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं, इससे मुझे इतना रिटर्न आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को कंपैरिजन, अच्छा इसमें कंपैरिजन में ये कि यार इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है, इस तरह करके। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि रिटर्न के साथ साथ दूसरी चीज चलती है रिस्क, कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रिटर्न के, लेट्स सपोज मैं एक्सपेक्ट ये करी 100,000 मैंने इन्वेस्ट की, 10% मुझे रिटर्न आएगा। अब क्या मुझे वाकई 10% रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? अब वो जो डिफरेंस है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 10% और ओरिजिनल में मुझे जो रिटर्न मिलता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम रिस्क कहते हैं। कि ये रिस्क है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि मुझे 10% रिटर्न आएगा। अब वो 10% अगर रिटर्न नहीं आता तो वो दैट मीन्स वो रिस्क जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या वाकई मुझे उतना रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो जो अनसर्टेनिटी है कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, वो जो अनसर्टेनिटी है वो आपके रिस्क को मेजर करती है। और दिस इज हाउ वी डिफाइन द रिस्क। वेल, इन्वेस्टमेंट इज मनी स्पेंड विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मोर इन द फ्यूचर। दैट मीन्स हम इन्वेस्टमेंट ही इसलिए करते हैं पैसे कि हमें रिटर्न कोई आएगा, फ्यूचर में कुछ ज्यादा अमाउंट मिलेगी। अब वो अमाउंट अगर ना मिले तो दैट्स रिस्क। So whenever you have to find out the return is equals to amount received minus amount invested. That means कि let's suppose if you are investing 1,000 rupees और उस 1,000 rupees में के ऊपर जो आपको रिटर्न आया वो 1,100 आया। एक साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, 1,100 आया आपका आंसर। तो 1,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 1,100 आपको रिटर्न आ रहा है। तो दैट मीन्स कि जो 1,000 इन्वेस्टेड अमाउंट थी और ओरिजिनल अमाउंट आपको जो रिटर्न आया दैट इज 1,100। तो 1,100 माइनस 1,000 करेंगे, दैट मीन्स ₹100 आपको अर्निंग्स आ रही है। दैट ₹100 इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू जो एक सर्टेन रिटर्न आपको बताता है। लेकिन लेट्स सपोज के आपने सपोज ये कर लेते हैं कि 1,100 के आप कोई एक सर्टेन परसेंटेज आपने 1,000 तो पहले देखा, लेकिन आप ये देखते हो कि आपके पास अगर 100,000 इधर ही इन्वेस्टमेंट करनी हो कितना होगा, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करनी हो, 1 मिलियन 1 बिलियन कितना इन्वेस्ट करना है तो उसकी अमाउंट क्या होगी। ये चीज आपको ये एग्जैक्टली इस तरह से आंसर रिटर्न नहीं बताता। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न से फायदा क्या होता है कि एक तो आपको साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साइज ऑफ रिटर्न बता देता है कि लेट्स सपोज आप 100,000 इन्वेस्ट करोगे तो 10% आएगा। 10% ऑफ 100,000 निकाल लिया जाए। अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो भी 10% आएगा, तो या 20% आएगा, 15% आएगा, या इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इतना परसेंटेज आएगा। अब अगर एक बंदे को एक साइड पे एक साल के अंदर अंदर 10% रिटर्न आ रहा हो और दूसरी साइड पे 5 सालों में 10% रिटर्न आ रहा हो, दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, वही कि हमें एक साल के अंदर जो 10% रिटर्न आ रहा है। अब जो वो 10% है दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न। तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न हमें ज्यादा बेहतर आंसर देता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी कि आपने कितना परसेंटेज रिटर्न या कितना साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना साइज ऑफ रिटर्न आएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग। हमने 1,000 की इन्वेस्टमेंट की और हमें 1,100 मिला। सो वी गॉट 1,100 and the amount we invested is 1,000 or amount invested is 1,000. So that means 1,100 minus 1,000 over 1,000, that would
be equal to 10%. तो आपका आंसर would be 10%. तो 10% आपके, इसका मतलब है कि आपको 1000 इन्वेस्ट करें तो 10%, अगर यही आप 10,000 इन्वेस्ट करें इसी जगह पे तो आप 10,000 का 10% निकाल सकते हो बड़े इजीली. तो 100,000 के 10% इज 100, 10,000 का 10% इज 1000. इसी तरीके से आप अपना हिसाब निकालते हो कि किस तरीके से आपके परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आएंगे. और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एक सर्टेन जनरली आपने जस्ट फाइंड आउट करना है कि इतनी इन्वेस्ट करें कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा, बस फॉर द टाइमिंग. बस थोड़ी सी आपने अगर जल्दी जल्दी सर्टेनिटी या रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस भी होते हैं जिसके अंदर जरा डिटेल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फाइंड आउट किया जाता है, फिर देखा जाता है, प्रोबेबिलिटीज देखी जाती है. वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा. लेकिन जब आपने सर्टेन लेवल पे एक बस जल्दी से क्विक रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना, दैट क्विक रेट ऑफ रिटर्न इज थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट दिस रेट ऑफ रिटर्न. लेट्स डिफाइन द रिटर्न, या आप ये देख लेते हो कि रिटर्न एक्चुअली जिसकी हम इतनी देर से बात करें वो है क्या. वेल, इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन द मार्केट प्राइस इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स द इनकम यू आर रिसीविंग, जो इनकम आप रिसीव कर रहे हो on an investment plus change in the price is found out as a percentage of the original amount invested. So let's look at the formula, that is R is equals to dt plus pt minus 1 whole over pt minus 1. This pt minus 1 is the amount you invested. This d is your income received, extra income received जो हुई है, that's your return. PD is your change in the price. That means कि year 1 पे इतनी थी तो year 2 पे कितनी हो गई. ठीक है, year 2 पे हमें इतना मिला तो year 1 पे इससे पिछले वाले year में कितना मिला, तो t minus 1 करते हैं. This is what gets you a return. Let's look at the return example. The stock price for stock A was rupees 10 per share 1 year ago. The stock is currently trading at 9.50 per share and the shareholder just received 1 rupee dividend. What return was earned over the past year? तो past years के ऊपर कितना return आया था ना. The stock price for stock A was rupees 10. Rupees 10 per share 1 year ago. अब the stock is currently trading at 9.50. That means कि एक साल पहले उसकी प्राइस क्या थी 10, आज उसकी प्राइस है 9.5 और उसका डिविडेंड कितना अर्न कर रहा है वो 1. अगर हम इस पे रिटर्न फाइंड आउट करें तो दैट इज R is equals to amount received, that is D plus change in price whole over amount invested. So R is equals to D plus P2 minus P1 over P1. That means when 1 हमारा डिविडेंड था वो अमाउंट रिसीव हुई प्लस 10 माइनस 9.5 whole over 10 into 100. The answer would be 0.05 into 100, that is 5%. इसका मतलब है कि what return you are going to earn is 5%. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज हो, 9.5 years अगर उसकी 9.5 अगर उसकी ओवर द ईयर प्राइस में चेंज आए, तो दिस इज योर रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द सिंपल परसेंटेज रिटर्न. Now let's look at the risk and return and the investment and the risk and return on that investment. Well, let's suppose you invest and you have two different options whenever you are going to do for the investment, and specifically in stocks or any financial asset, you have two kinds of options. The first one is you do a standalone investment and the second is you do a portfolio investment. When you talk about standalone investment means that you are going to invest in a single asset, single financial asset. किसी भी financial asset के अंदर आप invest कर देते हो. Now let's suppose if you are talking about the company is like एक company है, उसके वो shares issue कर रहे हैं, आप उस share में investment कर देते हो. एक चीज है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बजाय इसकी किसी एक जगह इन्वेस्ट करने के आप क्या करते हो कि आपने 100,000 इन्वेस्ट करना था, या तो 100,000 का 100,000 एक ही जगह एक ही कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप वो यही 100,000 कहीं और जाके किसी और जगह इन्वेस्ट करो. अब दूसरी जगह ऑप्शन क्या है, 100,000 को मैंने डिवाइड
100,000 में से मैंने 25,000 इन्वेस्ट किया कंपनी ए में, 25,000 मैंने कंपनी बी में, 25,000 मैंने कंपनी सी में और 5,000 मैंने कंपनी डी में इन्वेस्ट किया। 4 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया। अब एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था पहले 100,000, मेरे पास 2 ऑप्शन है। 100,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न भी आया, थोड़े टाइम बाद उसमें रिस्क में इन्वॉल्व है। अब रिस्क इन्वॉल्व, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, आपके सारे पैसे खत्म। कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है, आपके पास रिस्क है, कभी ज्यादा कभी कम बहुत कम हो सकता है, रिटर्न उतना ना मिले। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये सिंगल स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, उस पर स्टैंड अलोन रिस्क, स्टैंड अलोन रिटर्न आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में अब क्या होता है कि पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न इस तरह से है कि यू इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन 4 or 5 डिफरेंट प्लेसेस। पोर्टफोलियो में ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, 2 or more सिक्योरिटीज, 2 or more फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने 4 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की। एक कंपनी का रिस्क ज्यादा है कि जी उसकी स्टॉक प्राइस गिरी है, बाकी 3 की ग्रो कर रही है, 2 की डिक्रीज करेंगे, 3 की इंक्रीज करेंगे। अब जो ओवरऑल जब हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो जो ओवरऑल एवरेज है स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, अब लेट्स सपोज यू हैव इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए बी सी डी। अगर इसकी प्राइस डिक्रीज करी है और बाकी सबकी इंक्रीज करी है, तो दैट मीन्स -1 + 1 + 1 + 1, इसकी जो हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो इसकी एवरेज क्या होगी? -1 + 3, that means that would be 2/4, 0.5। फिर भी आपका रिटर्न जो 50% रिटर्न आ रहा है विद एक तो 50% रिटर्न आ रहा है विद पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 50% रिटर्न आ रहा है। अगर एक वैल्यू कम भी हो रही नहीं। अब लेट्स सपोज मैंने सिर्फ स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, ईयर 1 में मुझे स्टॉक ए जो है वो +1 देता है, ईयर 2 में मुझे स्टॉक ए -1 देता है। अब ये जो -1 है उसके बाद फिर -1, फिर -1। अब जो -1 जा रहे हैं मेरे लॉसेज और मेरे जितनी मैंने इन्वेस्ट की है सारी की सारी अमाउंट, यहाँ पे मैंने 25,000 डाला होता 3, इसके लिए 75,000 मुझे जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सिर्फ एक 25,000 जिसमें थोड़ी कम वैल्यू में इंक्रीज आ रहे, वो कम डिक्रीज हो रहे, लेकिन ओवरऑल रिटर्न मेरा पॉजिटिव ही है। इसलिए हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसलिए हम इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि जब whenever you have to diversify your risk, you do a portfolio investment. अब standalone investment के अंदर you have standalone return and standalone risk. That means if you are investing in a single asset or a single financial asset, you are going to get a return that is your expected standalone return, and you are going to get a risk that is the risk involved is standalone risk. Whenever we are having a portfolio investment, we will have portfolio expected return and portfolio expected risk. This is about your risk and return. Now let's look at standalone expected return in detail. Well, whenever we talk about the return, expected rate of return on an asset is the weighted average of possible outcomes on an investment with weights being probabilities. That means expected rate of return की बात करें standalone investment के अंदर, जब भी investment की जाती है तो हम return expect कर रहे होते हैं। अब हर expectation is forecasting, क्योंकि मैंने अभी आज investment की, मुझे फौरन तो returns नहीं मिल जाएंगे, तो मैं ये देखती हूँ कि जो ऑप्शन है कंपनी ए कंपनी बी, दोनों में से किस तरह इन्वेस्ट किया जाए। कंपनी ए मीन्स कि you are doing an investment of 100,000 in company A and you are going to get return. You have another option of investing in company A and company B. अब इसमें क्या है कि आप weighted average of possible outcomes लेते हैं। Expected rate of return on an asset, expected rate of return on an asset is the weighted average of possible outcomes. That means जितने possible, मुझे मेरी probability है कि यहाँ पे भी कुछ returns मिलेंगे, A से भी और B से भी। अब दोनों के returns को find out करके उनको weights देके उनको उनकी एक single value find out करते हैं, जो average find out की जाती है, और फिर देखते हैं दोनों को compare करते हैं कि किसकी average ज्यादा है, तो जिसकी average ज्यादा उसमें investment कर देते हैं A और B में से, let's suppose। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका वेटेड एवरेज होती है ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, क्या एक्सपेक्टेशन है कि पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और वो फोरकास्टिंग के थ्रू होती है। लेट्स लुक एट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज आर कैप इज इक्वल टू R1 P1 प्लस R2 P2 अप टू RN PN, मतलब सो ऑन, तब तक जब तक कि आप एक्सपेक्ट करेंगे। आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट की है तो इतना रिटर्न आएगा, 6 साल की इन्वेस्टमेंट की है, फॉरएवर इन्वेस्टमेंट की है तो कितना रिटर्न आ रहा होगा। या आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना इतना रिटर्न आएगा,
तो जी कितना रिटर्न आएगा, कितने 3 सालों की फोरकास्टिंग कर लियो, 3 सालों की फोरकास्टिंग का रिटर्न आज फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कितना ओवरऑल रिटर्न है विद द प्रोबेबिलिटीज। द एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम समराइज फॉर्म में इसको लिखे तो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडअलोन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज R cap is equals to summation I is equals to 1 to n RIPI, where R cap is the expected rate of return on your investment, on your asset or investment. RI is the return of the first possibility, ith possibility. कितनी क्या क्या possibilities हैं कि मुझे, मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने 100,000 इन्वेस्ट किए, पॉसिबिलिटी ये है कि 10% रिटर्न आ सकता है, 20% आ सकता है, 30%। ये मेरी पॉसिबिलिटीज है कि 10% भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है। ये जो पॉसिबिलिटीज हैं इनका अगर मैं वेट्स फाइंड आउट करूँ तो मैं एवरेज फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। Then we have PI, that is the probability of the return occurring. अब probability की क्या probability है कि 10% रिटर्न आएगा, क्या probability है कि 20% आएगा, क्या probability है कि -10% आएगा। वो probability क्या है कि कितना कितना रिटर्न आ रहा है, this is your PI. And then we have N, that is the number of total possibilities. क्या number of possibilities है कि I to 1, I is equals to 1 to N अगर हम करें तो क्या possibilities है कितना रिटर्न आएगा। Now let's see how we find out the expected return on the Standard Aviation. Let's suppose we have some stock, that is stock BW, and we are investing an amount. Before investing, we want to know what is the expected return on that investment. So let's see, when we must have two values, RI, that are your possible outcomes, कि क्या possibilities है कि ये return आ सकता है। PI is your probability, कि क्या probability है कि RI जो आ रहा है वो इतनी प्रोबेबिलिटी कि लेट्स सपोज वी हैव 15% रिटर्न, तो कितना 10% उसके चांसेस है कि वो आए, तो प्रोबेबिलिटी इज योर चांस कि ये ही एग्जैक्टली आपका रिटर्न आएगा। सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज इफ द वैल्यूज आर पुट इन द फॉर्मूला, और फिर आप उसके एवरेज फाइंड आउट करके टोटल सम अप करो तो आपके पास एक सर्टेन आंसर आ जाता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ R cap और द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, यू हैव 5 different outcomes, that whether if you invest the certain amount in BW stock, you're going to have either you'll have -15%, that is loss, -33%, or you might have a 9% return, 21% return और 33% return। ये chances है मेरे कि यार ये return आ सकता है। अब क्या probability है? We have 10% chance that -0.15 would be the return. We have 20% chances that there would be -3% return. We have 40% chances that there would be 9% return. We have 20% chances that 21% would be return, and we have 10% chances that there would be 33% return. When we have to sum up the probabilities, तो एक probabilities याद रखें कि probabilities की जो भी values दी हुई है वो सारी sum up करके 1 की equal होंगी, और अगर तो ये points में दी, अगर वो numbering में दी हुई है तो वो equal to 100% होगी। तो आपके this must equal to 1. Then we'll find out RIPI. That means कि जो हमने formula use किया, that is R1 P1 plus R2 P2 R3 P3 और उनकी summation ले ली है। तो if we find out the values, अगर आप यहाँ देखें, what we do is we would have -0.15 into multiply by 0.10. We have -0.03 into 0.20. We have 0.09 into 0.40. We have 0.21 into 0.2, and we have last 0.33 into 0.10. और इन सब को जब ऐड किया, यहाँ पे सम अप किया, तो द आंसर वी गेट इज 0.909. दैट मीन्स दिस वुड बी 9%. So the expected return for stock BW is 0.09 or 9%. 9% is your answer for this BW stock है। On average इसका मतलब ये है कि different अगर chances देखें, on average the answer we will get is rupees it would be percentage return, that is 0.09 or 9% return on your investment in stock BW. Now if we look at the expected return example, another example, and we have to compare different stocks, which is what we most of the time are doing in our investment. Now let's see, we have stock A, stock B, and the probabilities of both the stocks. Stock A has the value of 20%, 15%, 10%. Please don't forget to have a paper, pen and the calculator, because this is very important to solve the questions right away, otherwise आपको समझ नहीं आएंगे। तो 20% अगर आपका रिटर्न है, 15% 10%, चांसेस क्या है कि 30% चांस ये है कि आपका 20% रिटर्न आएगा, 40% चांस ये है कि 15% आएगा, और 30% चांस है कि 10% रिटर्न आएगा। इसी तरह स्टॉक बी के लिए, ये स्टॉक ए के लिए था। अब लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज, लेट्स सी व्हाट वी से इज R cap is equals to R1 P1 plus R2 P2
प्लस R3P3, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल आउटकम्स हैं. फॉर RA दैट मीन्स स्टॉक A के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट इज 0.2 इंटू 0.3. ठीक है, ये R1 हो गया, ये P1 हो गया, प्लस 0.15 इंटू 0.4 प्लस 0.1 इंटू 0.3. एक चीज याद रखिएगा, ऐसा ना एक चीज परसेंटेज की आप डायरेक्टली 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं. 20% दैट मीन 0.2 आप लिखोगे, उसको पॉइंट्स में करके या दूसरी वैल्यू को भी परसेंटेज में करो या दोनों को पॉइंट्स में कर लो. द आंसर विल गेट इज 0.15 और 15%. Now when we talk about stock B, that is, let's find out return for stock B. That is R1P1 plus R2P2 plus R3P3. We have 1%, that means 100 है तो 100 is 1. 1 into 0.3 plus 0.15 into 0.04 plus 0.1 into 0.3. The answer we are going to get is 15% or 5 or 0.15. वैसी कोई कंडीशन है जिसमें रिटर्न सेम आ गया, लेट्स सपोज यही है, ठीक है. तो वी डोंट नो, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंड अलोन रिस्क और रिटर्न, तो हम ना ज्यादातर कंपैरिजन कर रहे थे. जैसे हम बीडब्ल्यू में जो स्टॉक था बीडब्ल्यू, उसमें स्टॉक को इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किसी से नहीं किया. दैट वाज द आंसर. हमें पता चल गया जी 9% आता है. दैट मीन्स कि 9% रिटर्न आपको मिलेगा अपने स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर. आप अंदाजा लगा सकते हो विद द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड. नाउ व्हेन वी हैव टू कंपेयर, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टैंड अलोन रिटर्न या रिस्क कब फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जब आप दो आपके पास ऑप्शन है कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट के, एंड यू कंपेयर बोथ ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल इफ वी से कि जी आपका स्टॉक ए स्टॉक बी था, दोनों के हमने रिटर्न फाइंड आउट किया, दैट इज 15%. इसका मतलब है दोनों में इन्वेस्टमेंट जहां मर्जी जितने मर्जी टाइम के लिए करें, जैसे भी करें, 15% स्टॉक ए से भी आना है, 15% स्टॉक बी से आना है. लेकिन यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी इस चीज की कि कितना ज्यादा रिस्क इन दोनों में से किस में ज्यादा, जिसका रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम होगा हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो वो इन्वेस्टमेंट हमने देखे कि रिटर्न तो चलो इक्वल आ गया. अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से रिस्क किसका कम है. जिसका रिस्क कम है और हमें मतलब रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल इतना तो आ ही रहा है कि हम लोग कंपनसेट कर ले अपने रिटर्न को, तो द आंसर वुड बी योर कंपैरिजन बिटवीन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी. Now let's look at risk. What is the risk, or let's define the risk. The variability of return from those that are expected is defined as risk. अब क्या expectation? What are rate of return do you expect on your investment this year? Okay, what is the rate of return you expect this year? Now what rate you will actually earn? What do you expect and what you are going to earn? Doesn't matter if it is a bank certificate of deposit or a share of stock. देखिए रिस्क किस तरह से आपको डिफाइन करते हैं. 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट. पहली चीज ये कि जो मैं रिटर्न का एक्सपेक्ट कितना, मैं जो इन्वेस्टमेंट करी उसमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो मुझे ओरिजिनल में मैंने कितना अर्न किया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ थी, ओरिजिनल में मैंने कुछ अर्न किया. और क्या ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या वो सिंपल बैंक में इन्वेस्टमेंट थी, बैंक में जाकर अपनी सेविंग्स डालनी थी, या अपनी सेविंग कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की. अब रिस्क के कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इन दोनों में से. पहला चीज ये हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा और क्या वो एक्चुअल रिटर्न से डिफरेंट है कि नहीं. तो जब भी आपका एक्सपेक्टेड, आप ये एक्सपेक्ट करोगे इतनी 100,000 इन्वेस्ट किया 10% रिटर्न आएगा, लेकिन एक्चुअली वो 10 नहीं 9% आता है. जो 10 और 9% के बीच में जो रिस्क है ना, कि अनसर्टेनिटी है 1% की, दैट 1% इज योर रिस्क. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रिस्क. नाउ थर्ड पॉइंट की ये बड़ा जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो. अब जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो रिस्कियर है या नहीं रिस्कियर, या कोई दूसरे से कंपेयर करके कितनी रिस्की है. व्हेन वी फाइंड आउट द स्टैंड अलोन रिस्क, इट इज द प्रोबेबिलिटी और द चांस दैट द एक्चुअल रिटर्न वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. आपके एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर डिफरेंस आएगा. मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि मुझे 100 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में मुझे 90 रुपीज मिलते हैं. मुझे 10% का डिफरेंस है, दैट इज योर रिस्क, दैट डिफाइंस द रिस्क. Now what is standard deviation? Standard deviation is
indicated by sigma. It is a statistical measure of the variability of a distribution around its mean. That means क्योंकि mean value है, mean value के against कितनी deviation है, कितनी आपकी values mean से diverted है, original जो आप expect कर रहे हो mean while है, mean की expectation, mean is your expectation, और इससे दूर कितनी actual में आपकी value deviate करती है, that is your standard deviation. इसीलिए हम इसको क्योंकि variability बताती है, इसीलिए हम, और risk भी हमारा variability होता है, इसलिए हम standard deviation यूज करते हैं risk find out करने के लिए. And it is the square of the variance. जो हम variance find out करते हैं उसको square ले लिया जाए तो आपके पास वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन कि आपकी किस तरीके से आप डिटरमिन करोगे हाउ टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. नो स्टॉक BW इज योर क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने पहले किया है कि उसके RI की वैल्यूज क्या है, PI की वैल्यूज क्या. हमने ये देख लिया है कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन RI minus R cap square into probability whole under the root. Summation I is equals to 1 to n. ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा का फॉर्मूला है. अब इसमें क्या करते हो आप, इसका मतलब ये है कि आप RI माइनस R कैप फाइंड आउट करोगे, RI माइनस R कैप और उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. तो हमने क्या किया कि हर एक लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली. वी नो वी हैव द वैल्यू ऑफ RI, वी हैव द वैल्यू ऑफ PI, वी जस्ट हैव टू पुट इन द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या, RI माइनस R कैप पावर स्क्वायर. तो क्या करोगे आप, RI माइनस R कैप करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस 0.15. ये जो आपका R कैप है ये वो आंसर है जो आपने ओरिजिनली रिटर्न के लिए फाइंड आउट किया था. तो व्हेन वी टॉक अबाउट RI, दिस इज योर पॉसिबल आउटकम्स, PI इज योर प्रोबेबिलिटी एंड R कैप इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने अभी फाइंड आउट किया था क्वेश्चन के अंदर. तो अगर आप इसी क्वेश्चन के देखो तो हमने पहले क्या किया था, हमने 0.09 फाइंड आउट किया, वो वैल्यू 9% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर विद पॉसिबल आउटकम्स एंड देन देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. व्हाट वी डू इज माइनस 0.15 माइनस 0.09 9% जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 0.10. ये हर एक के लिए. अब सेकेंड वाली वैल्यू के लिए देखिए हमने क्या किया, माइनस 0.03 माइनस 0. एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 0.9 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2. सो जो पॉसिबल आउटकम्स था RI की वैल्यू माइनस ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज 9%, इसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी PI की वैल्यू. देन व्हाट वी डू इज अगेन 0.09 माइनस 0.09 का स्क्वायर इनटू 0.4. द आंसर वुड बी 0. सिमिलरली इसी तरीके से you have 0.21 minus 0.09 का square into 0.20. Similarly, the next is 0.33 minus 0.09 इसका square into 0.33, that is your probability, and then you find out the answer. अब इन सब values की जो भी आंसर आएगा इन सबको sum up करेंगे और sum up करने के पास हमारे पास जो आंसर आता है, क्योंकि हम summation यूज करें, the answer we get is 0.1728. So what we do is in this question, अब हमने क्या किया है, पहले हम 0.15 into point में से हम माइनस करते हैं अपने 9% की वैल्यू और फिर अपनी प्रोबेबिलिटी देखते हैं. So what we do is we have find out the value of sigma, that is we have find out the value क्योंकि sigma का ये फॉर्मूला है summation I is equals to 1 to n into RI minus R cap into PI, जिसके अंदर हमारे पास PI is your probability, R cap is your expected rate of return, RI is your possible outcomes, और इन सब का sum up करके अंडर रूट लेना है. The answer we have got, अगर आप ये देखें कि इस स्लाइड में हमने क्या किया कि इन सब में वैल्यूज की और इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट किए, उन सबको sum up किया, तो what we got is 0.01728. 0.01728 is your sum up answer. इसका अंडर रूट लें तो आंसर we get is 0.13145 which is approximately is equals to 13.15%. इसको अगर मल्टीप्लाई बाय
100 किया जाए. So the value of sigma is 13.15%. That means if we invest certain amount in this PW stock, the return we are going to get is 9% and the risk involved is 13.15%. लेकिन the answer of this return के 13.15% या आपका standalone 9% ये हमें कोई आंसर नहीं देता. ये हमें नहीं बताता कि ये क्या है 9%. ओके जी, हमें सिर्फ इतना बताया कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो इतना रिटर्न, इतने टाइम में हमें इतना रिटर्न मिलेगा और इतना परसेंटेज रिस्क उसमें इन्वॉल्व है. तब तक आप सही तरीके से अपनी डिसीजन नहीं कर सकते until unless you have some options, other options जिससे आप कंपेयर कर सको. Let's say you have the stock BW and you have stock AB. So stock BW जो हमने अभी फाइंड किया उसमें 9% रिटर्न है, 13.15% रिस्क है, और दूसरी कंपनी है जिसके अंदर रिटर्न 10% है लेकिन उसका रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर 20% रिस्क इन्वॉल्व है. Let's say तो वो ज्यादा वैल्यूज है, फिर you are expected to invest in BW स्टॉक जिसके रिस्क थोड़ा कम इन्वॉल्व है. तो रिटर्न के साथ साथ हम ये भी बड़ा देखते हैं कि आपका रिस्क कितना ज्यादा इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो आपको वैल्यूज देगा. Now let's look at another example of standard deviation, how we are going to find out the risk on the standalone investment. We have stock A and we have stock B, let's say, and we have the value of probabilities कि क्या probability है कि कितने expected possible outcomes होंगे. Now let's suppose stock A के लिए we have 3 possible outcomes, that is 20%, 15% and 10%, and the probability is 0.3, 0.4 and 0.3 respectively. Similarly stock B के लिए हमारी 100%, 15% and minus 70% है और हमारी probability भी accordingly 30, 40 and 30 respectively. Now let's find out the value of standard deviation for the formula. We have sigma is equals to, क्योंकि हमारे पास 3 values हैं, we would have this under root Ri minus R cap power P square P1 plus R2 minus R cap square P3 plus R3 minus R cap power square plus power P3. Now if we put in the values for the stock A, let's suppose we are finding out sigma for stock A, the answer would be, we would have R1, this is your R1, R2, R3. These are your possible outcomes. First possible outcome, second possible outcome, third possible outcome. The first possible outcome is that means 0.2 minus अब R cap की वो वैल्यू जो कि हमने एक्सपेक्ट, क्योंकि R cap आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है. अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया था R1 P1 plus R2 P2 plus R3 P3 करके. The answer was 15% for stock A and 15% for stock B. So we'll put this value of 15% R cap here. That is 0.15 the square into the probability is 0.3 for first option. Then we have 0.15 minus 0.15 the square, the probability is 0.4 plus 0.1 minus 0.15 square and the probability is 0.3. If we find out, the answer is 0. कैलकुलेटर से अभी इसी वक्त आप साथ साथ कैलकुलेट करें, हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करें, उन्हें सम अप करें, द आंसर वुड बी 0.433. तो 0.433 इसका अंडर रूट लिया जाए, द आंसर वुड बी 0.65 और 65% फॉर स्टॉक ए. दिस इज द वैल्यू फॉर स्टॉक ए. नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फॉर स्टॉक बी. Sigma B is equals to R1 minus R cap. The similar formula we are going to use, square P1 plus R2 minus R cap square P2 plus R3 minus R cap power 3 P3. Sigma B is equals to, अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज डालेंगी, स्टॉक बी की, और स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज किया जाएगा. अब स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%, जब हमने पिछले अभी फॉर्मूला से फाइंड आउट किया था पिछली स्लाइड्स के अंदर. और इसकी प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं. वी हैव 100%, दैट मींस वी हैव 1 माइनस 0.15, क्योंकि आपके स्टॉक ए स्टॉक बी दोनों का रिटर्न कितना आया था 15%, पावर 2 इंटू P1 प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस R2 is 0.15 minus 0.15, that is your expected return,
स्क्वायर P3 की वैल्यू इज P2 की वैल्यू इज 0.4 प्लस वी हैव 0. अब ये माइनस है, जब भी ब्रैकेट में कोई भी अमाउंट में अगर ब्रैकेट में लिखी जाती है तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि द अमाउंट इज नेगेटिव, तो माइनस 0.7 minus 0.15 square the into probability is 0.3. The answer is for sigma a is b is equals to under root 0.0015, which is approximately equal to 0.0387 or 3.87%. So we have 3.78% and we have 65%. So we get the sigma a return is 15%. R cap and sigma A is equals to 65%. R cap is equals to 15% जो हमने पहले फाइंड आउट किया था and sigma B is equals to 3.87%. Now let's compare these values कि आपके एक स्टॉक है जिसके अंदर 15% रिटर्न है, स्टॉक बी है उसमें भी 15% रिटर्न है. अब दोनों कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से बेहतर कौन सा है. यू हैव सिग्मा ए जिसकी 65% रिटर्न है और सिग्मा बी जिसके अंदर 3.87 रिटर्न है. इसका मतलब है मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूंगी या जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगी. द फर्स्ट थिंग इज कि दोनों का रिटर्न सेम है, दैट इज 15%, लेकिन हम लोगों की जो स्टॉक सिग्मा ए है उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है 65%, दूसरे में सिर्फ 3% रिस्क इन्वॉल्व है. तो जितना कम रिस्क होता है उतनी ज्यादा बेहतर हम लोगों के लिए होता है. तो ऐसा होता है कि लो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, लेकिन दैट इज ओनली इन दैट केस कि अगर आपका रिस्क कम है लेट्स से तो लेस रिस्क है. लेस रिस्क मीन्स लेस रिटर्न, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका कहीं ना कहीं रिस्क बहुत है, हाई रिस्क हाई रिटर्न. ठीक है, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली जो एक हम रोटेशन यूज करते हैं वो उसमें वो तब आपके लिए ठीक है जब जो जितना आप रिटर्न अर्न करें, लेट्स सपोज 100,000 के ऊपर आप 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न करें, दैट मीन्स 10,000 और 100,000 इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा ओवर द टाइम पीरियड. तो 10,000 अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करें तो इसमें अगर रिस्क ज्यादा भी इन्वॉल्व हो तो यू विल गो फॉर इट. लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिसमें 100,000 इन्वेस्ट किए, 1,000 आपको पर मंथ मिल रहा है, 1,000 इज पर मंथ वो रिस्क, लेकिन उसके अंदर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो आप कभी उस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाओगे, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे जो कि बेशक रिस्क ज्यादा है लेकिन वो रिस्क को कंपनसेट कर रहा है अपने रिटर्न के साथ, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न देके, तभी आप हाई रिस्क हाई रिटर्न कहते हो. तो इन दैट केस व्हाट वी विल चूज इज स्टॉक बी, क्योंकि उसका जो सिग्मा है दैट इज 3.87%. 3.87 मतलब कम रिस्क है और दूसरे का 65, तो दोनों का रिटर्न क्योंकि सेम है तो विल गो फॉर स्टॉक बी. ओके, लेट्स लुक एट the coefficient of variation. Now why we use coefficient of variance is we in order to find out the relative risk, or it is the measure of the relative risk and it find out that which value is better. For example अगर हम जैसे स्टॉक ए स्टॉक बी की बात करें तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा, अभी तो हमने रिस्क देख के बता दिया, लेकिन नॉर्मली रिलेटिव रिस्क कितना है दोनों में से बेहतर कौन सा है. फॉर दैट रीजन, फॉर कंपैरेटिव रीजन कंपैरिजन के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं. नाउ द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन of this distribution, that means the ratio of standard deviation to the mean is the coefficient of variance. क्योंकि ये statistical measures होते हैं इसलिए हम उनको distribution की बात करें. In case of this stock or risk and return, in case of finance, what we do is coefficient of variance is equals to sigma over r, that is expected risk over expected rate of return, sigma over r cap. Now if we find out the coefficient of variance for BW, जो कि हम अपनी first example देखी जा रहे हैं कि बास्केट वंडर्स हमारे पास एक कंपनी है जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करना है. उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कितना रिटर्न आया था, 9% रिटर्न है, और जो मेरा रिस्क है दैट इज 13.15%. तो दैट मीन्स कि अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं फिर दोनों को देखते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन सा. दैट इज 13.15 डिवाइडेड बाय 9% इज इक्वल्स टू 1.46. आपका 1.46 इज दैट रिलेटिव मेजर कि 1.46 आपका रिस्क है, लेकिन 1.46 अब क्या कह सकते हो रिस्क है, अच्छा इतना पर यूनिट रिस्क है, क्योंकि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को पर यूनिट ऑफ रिटर्न के ऊपर, दैट मीन्स अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और मुझे 10 रुपीज रिटर्न मिल रहा है तो हर 10 रुपीज के ऊपर मेरा 10% रिस्क है. अगर मेरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू या मेरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की 1.46 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 1.46, 100 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 100 और 10 आपको रिटर्न मिल रहा है, 10 रुपीज रिटर्न मिल रहा है, 1.46 आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू. दैट मींस हर 10 रुपीज जो मुझे मिल रहा है उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज 1.46. तो हमें ये सर्टेन वैल्यूज बताते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट कंपैरिजन के लिए ज्यादातर ये यूज होता है. एंड
कि कौन सा बेहतर है, तो द चांस दैट द एक्चुअल रिटर्न वुड वेरी, कि क्या चांसेस है कि एक्चुअल रिटर्न वुड वेरी, कितना वेरी करेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। अगर आपने स्टैट्स में पढ़ा हो तो स्टैट्स में एक चीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ आपके रिस्क को कंसिडर किया जाता है 15%, 15%, और ये जो बाकी पूरी वैल्यू है ये सारा, दिस इज 65%। तो आपके 65% ओरिजिनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो मीन से कितना डाइवर्ट हो सकता है, 15% पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज निकालते हो, एक्चुअल में जो हमने 16% निकाला है, 65% निकाला है, वो क्या है, प्लस माइनस 65%। जो हमने 3.87 निकाला, दैट इज प्लस माइनस 3.85%। सो इफ यू लुक एट दिस थिंग, वी हैड रिटर्न ऑफ 15%। 15% के अंदर कितनी वेरिएशन आएगी, कि मैं एक्सपेक्ट ये करी, मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 15%। मैं एक्सपेक्ट ये करी हूँ कि 15% रिटर्न आएगा, लेकिन कितना डिफरेंस आएगा आपके, अब एक्सपेक्ट तो 15%, अब लेट्स सपोज 15% या तो चेंज आता है। अब जो चेंजिंग आता है, कितना चांस है कि वो वेरी करेगा, वो आपका रिस्क है। मुझे पता है कि इसमें 65% रिस्क इन्वॉल्व है, दैट मींस 15 प्लस 65 कर दूंगी। इसका मतलब है या तो वो 15 के उसके वैल्यू को बढ़ा देगा या उस वैल्यू को कम कर देगा। अगर मैं 15 प्लस 65% करूँ, द आंसर इज 80%, एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू 15 माइनस 65%, दैट इज माइनस 50%। तो हमारी रेंज कितनी है, माइनस 50 से 80% तक की जो हमारी रेंज है, वो ये है कि हमारा रिटर्न कितना वेरी करेगा। हम एक्सपेक्ट 15% कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न कितना वेरी करेगा, कि हमारी रेंज क्या है, कि हमारा रिटर्न माइनस 50 से लेके 80% तक के दरमियान में हमारा कहीं एक्चुअल रिटर्न आएगा। तो हम यही देख रहे होते हैं कि हमारा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना चेंज है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% था, चांसेस कितने हैं कि 65% चांसेस है कि वो उतना 15% नहीं आएगा, लेकिन किस रेंज में आएगा, दैट विल इज 15 प्लस 65%, 15 माइनस 65%। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हमारी रेंज ये है कि माइनस 50 से 80% के दरमियान में कहीं रिटर्न आएगा। Then we have this what this coefficient of variance show is, this coefficient of variance shows the risk per unit of return. That means जितना भी मैं 15% अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो 15% हर 15% के ऊपर 65% रिस्क इन्वॉल्व है। तो पर यूनिट ऑफ रिटर्न के ऊपर जितना पर यूनिट रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर रिस्क बताता है आपको। द लोअर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस द बेटर इट इज, क्योंकि जितनी कम वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। Now let's look at this thing कि we have coefficient of variance। अब दो स्टॉक है, एक स्टॉक A, स्टॉक B। अब ज्यादातर coefficient of variance आपके कंपैरिजन के लिए होता है, और ऐसी कंडीशंस में ही होता है जहां पे आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। Now let's suppose if you look at this example, for stock A the return is 15% and for stock B the return is 30%. For sigma the value of sigma is 3% and 10% is your risk in case of stock B. तो स्टॉक ए 15% एंड 3%। अब इसमें जो हमारा रिटर्न है 15% और रिस्क कितना है, 3%, रिस्क कम है। लेकिन इसी को हम कंपेयर करें बी से, तो बी में हमारा रिटर्न कितना है, 30% हमारा रिटर्न है, और रिस्क कितना इन्वॉल्व है, 10% रिस्क इन्वॉल्व है। दैट मीन्स 15% रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन उसमें रिस्क कम है। जितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है 30%, उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है 10%। अब हमें नहीं पता, एक का रिटर्न ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। हम क्या कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क लेस हो, ग्रेटर एंड लेस। इसको हम बेटर इन ऑप्शन कहते हैं। Now in this case we have 15% रिटर्न लेकिन 30% रिटर्न। अच्छा मैं रिटर्न को देखूं तो इसका मतलब मैं स्टॉक बी सिलेक्ट करूंगी। जब मैं रिस्क को देखूं सिर्फ, तो इसका मतलब है कि मैं स्टॉक ए सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि स्टॉक ए का रिस्क कम है और स्टॉक बी का रिटर्न ज्यादा। अब ऐसी कुछ जब कंडीशंस आती है तो इनमें बेहतर रिटर्न क्या आएगा, बेहतर ऑप्शन क्या होता है, वी फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस in order to compare, इसीलिए कहते हैं relative risk बताता है। Now coefficient of variance is sigma over r cap, that means we have 3% over 15%, and we have sigma over r cap, that means we have 10% over 30%. So 3% over 15% is equal to 0.2 and 10% over 30% is 0.33. 0.2 is less than 0.33, so that means this value is less risky and we will go for stock A.
स्टॉक ए के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो रिस्क इन्वॉल्व कम हो और वो एज रिलेटिव कंपैरिजन की पर यूनिट ऑफ रिटर्न के ऊपर कितना रिस्क दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट रिटर्न अगर 15% है तो 3% मुझे सिर्फ रिस्क आ रहा है। 30% रिटर्न तो आ रहा है लेकिन उसके ऊपर हर 30% के ऊपर 10% रिस्क इन्वॉल्व है। रिलेटिव रिस्क और कंपैरिजन की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक ए इज अ बेटर ऑप्शन, सो विल सेलेक्ट स्टॉक ए। नाउ लेट्स समराइज द whole chapter, that is risk and return. We studied that what is a risk and what is a return. Return is your the amount the amount you receive on your investment is your return, the expectation you have. The risk is the variability or the chance that the original return would be different from your expected return, कि जो आप expect कर रहे हो उससे आपका actual return difference होगा. Then we studied that there are two type of investments. We have standalone investment and we have portfolio investment. In standalone investment we have expected rate of return standalone investment and expected rate of risk for expected risk for standalone investment. Standalone investment is the investment in a single asset or a single company and a single financial asset, while portfolio is the investment in two or more, in a group of two or more securities or two or more options. When we looked at standalone risk is standalone risk में and standalone expected return हमने देखा. Expected return for standalone is summation RIPI, that means we must have a possible outcomes and we compare those possible outcomes with the probabilities, तो हमारे पास आंसर आ जाता है. That is your percentage return. Then we have standalone risk, that means कि अगर आप R1 RI minus R cap into probability और उसकी summation लें तो sigma से हम लोग करते हैं standalone risk, that is the probability कितनी है, chance कितना है कि आपका return vary करेगा. Then we found out coefficient of variance, which is a relative which measures the relative risk and it tells you about the per unit risk per unit risk on your investment, कि कितना per unit return के ऊपर कितना risk आ गया, risk on per unit रिटर्न. और ये हमें ये बता कंपैरिजन के लिए यूज होता था. तो कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि क्या कंपैरेटिव वैल्यूज आ रही है, स्टॉक ए स्टॉक बी, दोनों में से बेहतर कौन सा है, किसका ज्यादा रिस्क किसका ज्यादा रिटर्न, और दोनों में से अच्छा कौन सा. जितनी ज्यादा कम वैल्यू होती है उतना ज्यादा बेहतर होता है. सो द लोअर द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस द बेटर इट इज, एंड वी सिलेक्ट दैट ऑप्शन ऑफ लेस रिस्की with less coefficient of variance value. Well, that was all about your today's lecture. We'll be moving to the portfolio investment in our next lecture. Thank you.